Hello students, today we will do the question answer of lesson number 2. Okay, your first question, who was Martin Luther King? इनके बारे में आपको लास्ट लेसन में भी बताया था. ठीक है, राइट हियर. Martin Luther King was an American Christian minister and activist who became the most visible spokesperson and leader in the civil rights movement. Okay, here to here. ठीक है, it's the answer of your first question. Your next question, who founded तवा मत्स्य संघ? हशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन एमपी. हशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है ना, एमपी में, वहाँ से हुआ था ये. ठीक है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएमएस? टीएमएस की फुल फॉर्म तवा मत्स्य संघ. राइट हियर. ओके, नेक्स्ट है आपके चूज करेक्ट आंसर्स. हु रिकॉग्नाइज ऑल इंडियन सिटीजन एज इक्वल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है ये, ऑप्शन बी. द वर्कर, फिशरमैन, एग्रीकल्चर, लेबर, स्लम्स, ड्वेल्स एटसेट्रा आर फाइटिंग फॉर इक्वालिटी. ये सब ने किसके लिए फाइट की थी? इक्वालिटी के लिए. द टीएमएस वाज फॉर्म्ड इन 1978. तवा इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ नर्मदा. ओके, नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. TMS is fighting for the rights of displaced tribals. In 1994, the fishing rights were given to private contractors. Fisher workers set up cooperative to increase their revenue. Okay, next है आपके true false. फर्स्ट आपको बाद में करा देंगे. ठीक है. Second, people who fight for equality are inserted everywhere. False. Namrata agitation brought the people attention toward the displacement of the people affected by the building last dam. It's true. Next here question answer. Where were issue for which तवा मत्स्य संघ was formed? क्या इश्यू था जो ये आपका तवा मत्स्य संघ बना था? Open the page number 147 for the answer of this question. Yes, in 1994 the government gave the rights for fishing in the Tawa reservoir to private contractors. These contractors dropped the local people away and got cheap labor from the outside. The contractor began to threaten the blazers who did not want to leave by bringing in hoodlums. The blazers stood united and decided that it was time to set up an organization and do something to protect their rights. Here to here. It is the answer of your first question. ठीक है. E का first short question here to here. Your next question is, how did the member benefit when the government gave the fishing right back to the तवा मत्स्य संघ? पेज नंबर 147 पे देखेंगे इसको भी हम. Yes, here. With the TMS taking over the fishing worker was able to increase their earnings substantially. This was because they set up the cooperative which would buy the catch from them at the fair price. The cooperatives would then arrange to transport and sell this in markets where they would get a good price. Okay, here to here is the answer of your second question. Your third question, how is equality promoted in India? Page number 145. Here to here. The Indian Constitution recognizes the principle of equality. It grants equal right to all. It prohibits discrimination on ground of religions, caste, creeds, and sex. It provides voting rights based on universal adult franchising. Here to here is the answer of your third short questions. Yes, your next question. Next question है आपका. Open the page number 147 for this answer. Yes, here to here. Okay,
द न्यूली फॉर्म तवा मतस्य संघ. 2. From 33 places of started the new year with the first sketch. Here to here is the answer of your first long question. नेक्स्ट है आपका राइट अबाउट नर्मदा एजिटेशन. नर्मदा एजिटेशन मीन्स नर्मदा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था ना, इसके बारे में. यस, नर्मदा एजिटेशंस. नर्मदा बचाओ आंदोलन इज इन इंडियन सोशल मूवमेंट स्प्रेडेड by native tribals, farmer, environmentalists and human rights activists against a number of large dam projects across the river Narmada. देखिए जो which flow through the state of Gujarat, MP and महाराष्ट्र. देखिए जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ पर फ्लो होती है, आपके गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी, ये 3 एरिया है, 3 स्टेट्स है जहाँ से ये निकलती है. तो कुछ यहाँ पे क्या था, एक डैम बनने वाला था, ठीक है. उसके लिए फाइट की थी, किन लोगों ने की थी, जो ट्राइबल्स, जो उस एरिया में, उसके एरिया में जो लोग आ रहे थे, जो ट्राइबल्स थे, फार्मर्स थे, इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे, उन सब ने, और जो ह्यूमन्स थे, उन लोगों ने राइट्स के लिए क्या किया था, फाइट की थी, एक आंदोलन स्टार्ट किया था. सरदार सरोवर डैम इन गुजरात इज वन ऑफ द बिगेस्ट डैम ऑन द रिवर एंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ द मूवमेंट. जो सरदार सरोवर डैम है गुजरात में, वो बहुत बड़ा डैम है, किस पर, नर्मदा नदी पर, ठीक है. एंड यही फोकल पॉइंट है किसका, इस मूवमेंट का. इट इज पार्ट ऑफ द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट हुज मेन एम इज टू प्रोवाइड इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पीपल्स ऑफ द अवर स्टेट. इसका जो ये डैम था, उसका जो मेन बनाने का मेन पर्पस क्या था कि लोगों के इरिगेशन और जो ये जो स्टेट्स है ना, इन सब तीनों स्टेटों के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना था, ठीक है. द मोड ऑफ कंपेनिंग अंडर द NVA की फुल फॉर्म होती है आपकी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है. NVA इंक्लूड्स कोर्स एक्शन, ठीक है, हंगर स्ट्राइक्स एंड रैलीज. इसके लिए क्या क्या किया था, बहुत सारे कोर्स एक्शंस हुए थे, हंगर भूख हड़ताल की गई, बहुत सारी रैलियां निकाली गई थी. द NVA विद इट्स लीडिंग स्पोक्स पर्सन मेधा पाटकर एंड बाबा मेट हैव रिसीव द राइट लिवलीहुड अवार्ड इन 1991. और इसके लिए जो इसके मेन स्पोक्स पर्सन थे मेधा पाटकर और बाबा मेट, इन लोगों ने स्टार्ट किया था इसको, जो मेन लीडर थे इसके, उन्हें इसके लिए 1991 में राइट लिवलीहुड अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है. इसको आप यहाँ से राइट कर लीजिएगा, हेयर टू हेयर. ओके, इज द आंसर ऑफ योर सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन. टॉपिक है आपका नर्मदा एजिटेशन, नर्मदा बचाओ आंदोलन. ओके, योर लेसन कंप्लीट. थैंक यू.